بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. گرامی قدر دوست و احباب، دیگر سامعین اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا بہت ہی بڑا فضل و کرم ہے کہ اس رب باری تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، پیدا فرما کر کے یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رہبری، رشد و ہدایت، زندگی کے گزارنے کے تمام طریقوں کو بتلانے کے لیے اللہ نے رسولوں اور نبیوں کو بھیجا، جن کے ذریعے ہم تک، آپ تک اور دیگر سارے مسلمانان عالم کو اسلام پہنچا۔ ہم میں سے ہر شخص اس بات کو جانتا ہے کہ اس دروئے زمین پر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام آئے ہیں، اور سارے کے سارے لوگوں کی دعوت اگر رہی ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ الگ سی بات ہے کہ ہر زمانے کے اندر اس کلمے کے اندر رسول کی جگہ پر ہر ایک رسول کا نام آتا رہا۔ لا الہ الا اللہ، موسیٰ رسول اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ہے نا، یعنی ہر رسول کے زمانے میں اس کو رسول بنایا۔ لیکن جو آخری رسول ہیں، خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بعد کسی بھی نبی کا آنا اب ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم الانبیاء بنایا کہ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس زمانے سے گئے تو ہم لوگوں کو یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ دین کے سارے امور کو بتلا کر کے وہ اس دار فانی سے کیا ہے رب باری تعالیٰ کی طرف انتقال کر گئے۔ اور کیا کہا کہ ہم نے جو یہ دعوت اور جو طریقہ بتایا ہے، اس کو میں نے مکمل طور سے تم تک پہنچا دیا ہے۔ اس لیے کہ خود قرآن کریم نے کہا کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہے نا۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں نے تجھے اپنا دین مکمل کر دیا یا نہیں، پہنچایا کہ نہیں؟ تو لوگوں نے کیا کہا؟ بھلا، کیوں نہیں؟ بالیقین آپ نے ہم کو دین اسلام مکمل پہنچا دیا، مکمل طریقے سے بتلا دیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ الانبیاء ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ اس دعوت کو جو میں نے چھوڑ دیا، جو میں اس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بلا دیا ہے، میں اس دعوت کو اتنا ہی پہ بس نہیں کرتا ہوں، اس دعوت کو اتنا ہی پہ بس نہیں کرتا ہوں، بلکہ اس دعوت کو کیا ہے علماء کے ذمہ سونپتا ہوں۔ یہ علماء کیا ہے؟ اس دعوت کے کیا ہے؟ وارثین ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دعوت کو لے کر کے آیا ہے، یہ کام علماء کرام کا ہے، یا پھر ان لوگوں کا ہے جو دین کی ایک بات
قرآن مجید کی ایک آیت کو بھی اگر جانتا ہے تو اس آیت کو لوگوں تک پہنچا دے. کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بلغوا انی ولو آیا. کیا؟ بلغوا انی ولو آیا. اگر میری جانب سے، کلام اللہ کی جانب سے، حدیث پاک کی جانب سے اگر تم ایک آیت، ایک ٹکڑا بھی اگر معلوم رکھتے ہو تو کیا ہے؟ تم اس کو دوسرے تک پہنچاؤ. ہے نا کہ اگر تم کو کوئی دین کا اہم معاملہ معلوم ہو گیا تو تم اپنے تک محدود مت رکھو بلکہ اس کو پہنچاؤ. ماشاءاللہ الحمدللہ یہ مؤسسہ جو آپ کو ہفتے میں 2 دن یا 3 دن یا 1 دن بھی جو درس کا کام دے رہا ہے، درس کا فریضہ انجام دے رہا ہے، تو اسے بہت فائدہ آپ کو بھی ہو رہا ہے. ہو رہا ہے نا؟ آپ دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں نا، اب آپ کے اوپر بھی ضروری بنتا ہے کہ اگر ہم کوئی چیز سیکھتے ہیں، ہم کو کوئی چیز جانکاری ہوتی، معلوم ہوتی ہے تو اس کو اپنے ساتھیوں کو بتائیں. اس لیے کہ اس دار فانی کے اندر انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے الا یہ کہ وہ جب تک زندگی گزارتا ہے، وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، آرام کرتا ہے، ادھر سے ادھر دوڑ دھوپ کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں صرف دنیا ہی میں رہ جائے گی. یہ ساری چیزیں دنیا ہی میں رہ جائے گی. آپ کھائیں گے، پیئیں گے، جو بھی کریں گے دنیا ہی میں. جو آخرت میں آپ کو کام آئے گا وہ آپ کے اعمال ہیں، آپ کے اعمال صالح ہیں، نیک اعمال ہیں. اگر آپ نے کسی کو ایک کلمہ سکھایا ہے، ایک دین کی بات سکھلائی ہے، اگر وہ اس پر عمل کر رہا ہے تو تا زندگی اور تا قیامت آپ کو اس کا ثواب ملتا رہا ہے. اگر آپ نے کسی کو نماز کی طرف بلا لیا ہے اور اگر وہ نماز میں پابند ہے تو اس نمازی کے ساتھ ساتھ آپ کے بھی اعمال میں ثواب لکھے جائیں گے. کیوں نہیں؟ ہم اور آپ کیوں نہیں اس کی طرف لپکیں گے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. ضرورت ہے کہ جو چیز ہم جان رہے ہیں، جو چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہے، اس کو ہم دوسروں تک پہنچائیں. آج اس بات پر اللہ رب العالمین کا ہم شکریہ ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنایا، انسانوں میں بھی مسلمان بنایا، مسلمانوں میں بھی امت محمدیہ کا امت بنایا. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، آج اس دنیا کے اندر ہم اور آپ بہت پریشان ہیں. پیسے کمانے میں، دولت لوٹنے میں، بچوں کی مستقبل کو سدھارنے میں. آج ہمارے گھر کے اندر کوئی فرد بیمار پڑ جاتا ہے، کوئی آدمی بیمار پڑ جاتا ہے تو ہمیں کافی تکلیف محسوس ہوتی ہے. ہم اس کے علاج کے لیے ادھر سے ادھر اس ڈاکٹر کے پاس، اس ڈاکٹر کے پاس. پیسے نہیں ہے تو سود بیاج پہ پیسے لے کر کے کیا کرتے ہیں؟ اس کا علاج کراتے ہیں کہ کیسے اس کی جان بچ جائے، کیسے اس کی جان بچ جائے. اس دنیا کے اندر اگر ہمارے پڑوس میں کوئی غیر مسلم ہے، اگر وہ بیمار پڑتا ہے، کسی مصیبت میں بھی پڑتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے نا. ماحول میں، معاشرے میں رہتے ہیں، بھائی اچھے تھے، ہے نا، ہوتا ہے. تو کیوں نہیں ہم اخروی زندگی کے لیے بھی سوچیں؟ کیوں نہیں اس بھائی کے لیے جو ہمارے گھر کا فرد ہے، جو قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہے، جو نماز کا پابند نہیں ہے، جو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا ہے، جو اسلامی خواتین کی عزت و لحاظ نہیں رکھتا ہے، کیوں نہیں ہم اس کو اس کی تعلیم دیں؟ جب ہم انسان کو، اپنے بھائی کو دنیاوی مسائل سے، دنیاوی آلام سے، دنیاوی تکلیف سے ہم کنار کرنے کے لیے، اس سے بچانے کے لیے ادھر ادھر دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، تو کیوں نہیں ہم اس کو قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرائیں؟ کیوں نہیں ہم اس کو اسلام کی تعلیم دیں؟ کیوں نہیں ہم اس کو اسلام کی باتیں بتائیں تاکہ یہ دنیا کی پریشانیوں کے ساتھ ساتھ آخرت کی پریشانی سے بچ جائے؟ یہ ہمارے اوپر اہم ذمہ داری ہے، ایک اہم ذمہ داری ہے. اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فلولا من كل فرقة فلولا نفر من كل فرقة يتفقهوا في الدين وينظروا قومهم اذا رجعوا اليهم. کہ ہم میں سے، ہماری
जमात में से, सोसाइटी में से, हमारे मुआशरे में से क्या है, एक जमात ऐसी होनी चाहिए, एक गिरोह ऐसी होनी चाहिए जो क्या है, दीन की समझ हासिल करे। क्या करे? दीन की समझ हासिल करे, दीन की तालीमात को सीखे, और जब वो अपने कौम की तरफ, जो अपने कौम की तरफ, समाज की तरफ वापस आए, तो क्या है, वो लोगों को डराए। किस चीज से? जो चीजें उनको मालूम हुआ है, अपने इल्म के मुताबिक वो लोगों को तबलीग करे, दावत दे। किस चीज की? दीन की, नमाज की, रोजे की, सौम सलात की, और अगर कोई गैर मुस्लिम भाई बगल में है तो उसे इस्लाम की दावत दे। आज हम में से सारे के सारे लोगों का कोई ना कोई एक दोस्त होता है, गैर मुस्लिम में से बताता हूं, कोई ना कोई एक दोस्त होता है, हर एक का कोई ना कोई दोस्त होगा, कोई अगल बगल में पड़ोसी होगा। तो क्या हमने उसको कभी इस्लाम की दावत दी है? कभी हमने अपने किरदार को झांक कर देखा कि हमारे किरदार, हमारा अखलाक कैसा है, हमारे अखलाक से वो मुतासिर हो रहा है कि नहीं? हम अपने अखलाक को टटोला? अगर नहीं तो जरूरत है कि हम अपने अखलाक को इतना बढ़ाएं कि वो हमारा दोस्त जो है वो हमारे अखलाक से वाकिफियत हो जाए, हमारे दीन की तरफ वो राग़िब हो जाए, हम दीन की अहम मसाइल जो इस्लाम की रग़बत की तरफ रहनुमाई करता है उसको हम उसके सामने बयान करें, ताकि वो भी इस्लाम के अंदर दाखिल हो, वो दुनियावी परेशानी से दूर होते हुए आखिरत के परेशानी से भी दूर हो जाए। अगर ऐसा मुमकिन नहीं रहा, ऐसी सोच अगर नहीं रही, तो जान लीजिए कि कल क़यामत के दिन हमसे ये सवाल किया जाएगा कि क्या तुमने अपने दोस्त को दीन की दावत दी या नहीं? तुमने अपने दोस्त को नमाज की दावत दी कि नहीं? जब आप तुम घर से निकल रहे थे, कोई दोस्त रास्ते में मिल गया, तुमने उसको कहा कि नहीं भाई चलो आज़ान हो चुकी है, नमाज पढ़ लेते हैं? कोई दोस्त अगर नमाज छोड़ते, रोजा छोड़ता है, रोजा नहीं रखता है, तो कभी हमने उसको कहा कि नहीं भाई क्यों तुम रोजा क्यों नहीं रखते हो? तुम रोजा रखो, तुम अल्लाह के अहकाम को मानो, तुम्हारे अंदर ये खराबी है, तुम इस खराबी से बच जाओ, ये बुराई है, उस बुराई को दूर कर दो। इस तरह की हमने दावत अपने साथियों को, दोस्तों को दिया है नहीं? ये सारे के सारे सवाल किए जाएंगे, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्ने आदम के क्या है, इब्ने आदम के कदम उस वक्त तक नहीं हटेंगे, नहीं हिल पाएंगे जब तक कि उनसे 3 सवाल नहीं पूछ लिया जाएगा। उनमें से एक चीज ये भी है कि जिस चीज की तुमने जानकारी हासिल की उस पर अमल किया या नहीं? तुमने अपनी उम्र को कहां बिताया? तुमने अपनी उम्र को कहां बिताया? और तुमने अपना माल जो कमाया वो किस चीज में खर्च किया? और जो तुमने इल्म हासिल किया उस पर अमल किया कि नहीं? तो जाहिर सी बात है हम में से सारे के सारे दीन के अहम उमूर को जानते हैं, अहम मसाइल को जानते हैं, तो क्यों नहीं हम इस दावत को आम करें? हम अपने दोस्तों तक, हम अपने अहबाब तक, हम अपने घरों में माँ बहनें अगर बेनमाजी हैं, माँ बहनें अगर इनसे दूर हैं, तो हम क्यों नहीं उसको नमाज की दावत दें? क्यों नहीं हम उसको इस्लाम की तरफ बुलाएं? ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा ये नहीं है कि हम और आप मुसलमान कहला रहे हैं, इस्लामी घराने में, मुसलमान घराने में पैदा हो गए तो इतना काफी नहीं कि हम मुसलमान हो गए, ये काफी नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह का पढ़ लेना काफी नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ना, उसके माने को समझना और उसके ऊपर अमल करना, ये काफी है। मामूली से छोटा सा कलमा है, लेकिन इसकी अहमियत इतनी बड़ी है, इसका वजन इतना बड़ा है कि अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर दुनिया की सारी चीजों को रख दो, दुनिया की सारी चीजों को एक पलड़े में रख दो और ला इलाहा इल्लल्लाह को एक पलड़े में रख दो, तो कहा मालत बिहिन्ना, ला इलाहा इल्लल्लाह का पलड़ा झुका ही रहेगा, वजनी दार रहेगा। मालूम ये हुआ कि इतने सारे उमूर है, इतनी दुनियादारी है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। अगर अहमियत है तो ला इलाहा इल्लल्लाह की, लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह लेना ये नजात नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह को मानना, उसको समझना, उस पर अमल करना, ये नजात है। अगर हमने ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं समझा,
तो फिर हम कहाँ दिन पर अमल कर पाएंगे? इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम कर जाते हैं जिसके ऊपर नाराजगी लिखी जाती है, जिससे हमारे अमाल अरकारत हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। जरूरत इस बात की है कि हम जिस मैदान में हैं, जो दावती काम हमारा है, उसको दूसरों तक पहुंचाए। दुनिया के अंदर या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं कहा कि ये लड़के, ये तुम्हारे औलाद तुम्हें एक कामयाबी की तरफ ले जाएंगे। अल्लाह ताला ने क्या कहा? ये औलाद, ये दुनियादारी, ये बीवी बच्चे क्या फितना है। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, कि औलाद और ये मानव दौलत क्या है? तुम्हारे लिए फितना है। तो हम और आप उसी फितना में मुब्तला हैं। हमें दीन की फिक्र नहीं होती है, हमें अपने मुआशरे की फिक्र नहीं होती है। फिक्र होती है कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, माशाअल्लाह हम दुरूस में हाजिर होते हैं, बस इतना काफी है। इतना काफी नहीं है, बल्कि काफी ये है कि अगर आप कोई इल्म रखते हैं, कोई चीज जानकारी हासिल करते हैं, आज के दर्स में कोई चीज मालूम हो रही है, तो उसको अपने भाइयों तक पहुंचा दें। मुमकिन है कोई भाई मिलने वाले हैं, जुलने वाले हैं, तो उसे बताएं। जब भी हम दुरूस में आते हैं तो चलो भाई फला जगह दर्स है ना। अगर कोई खाली है, अल्लाह का फजल है कि हर आदमी अपनी रोजी रोटी में लगा हुआ है, अगर कोई खाली औकात में है तो उससे आप कहें। और अगर उसको ड्यूटी ही ड्यूटी है, उसको अगर ड्यूटी ही ड्यूटी है, तो फिर भी अगर कभी वो महीना में एक दिन नागा करता है, तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई कंपनी वाला ऐसा होगा जिसको गिफ्ट करेगा। तो हर आदमी को इस तरह के प्रोग्राम में अटेंड करना चाहिए, हाजिरी देनी चाहिए, इल्म की जो शुआएं हैं उसको हासिल करनी चाहिए, इल्म की जो किरनी है, रोशनी है, उससे हासिल करनी चाहिए। जो अमाल हसना की तालीम देती है वो क्या है? वो इल्म दीन है। वही बताते हैं कि क्या है अमल, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। मैंने शुरू में कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम एक बेहतरीन उम्मत हो। क्या हो? तुम एक बेहतरीन उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, निकाले किए हो, पैदा किए गए हो। किसके लिए? बीवी बच्चों के लिए नहीं, औलाद के लिए नहीं, घर वालों के लिए नहीं, लोगों के लिए। ये आम लोग हैं, इसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं है। उखरिजत लिन्नास यानी तुम लोगों के लिए पैदा किए गए हो। क्या करते हो? तामुरून बिल मारूफ, तुम नेकी का क्या है हुक्म देते हो, व तनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोकते हो। अगर ऐसा हम करते हैं तब तो अल्लाह की वो जो कहा कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तब तो हम उसके हकदार हैं, तब तो हम खैर उम्मत के कहलाने के हकदार है। अगर नहीं तो फिर अगला पॉइंट हमारा खाली है, तो हम इसके हकदार नहीं है, हम खैर उम्मत नहीं है। खैर उम्मत क्यों कहा? तामुरून बिल मारूफ, तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो, व तनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोकते हो। वो उलाइका हुमुल मुफलिहून, और यही लोग क्या है? कामयाब। यही लोग कामयाब है जो लोग दावती काम करते हैं, लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाते हैं, इस्लाम के अहकाम की तरफ बुलाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की तरफ बुलाते हैं। तो फिर यही लोग कामयाब हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें जिस्म दिया है, जो शक्ल दी है, ये बहुत ही अजीम नियामत है। ये अजीम नियामत है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने तो कुरान के अंदर कहा, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को बेहतरीन ढांचे में बनाया है। खुद अल्लाह तबारक व तआला हमारी और आपकी तारीफ करे। दुनिया के अंदर बहुत सारे मखलूक है, जानवरों को देख ले, क्या है शैतान, क्या है, बहुत सारे मखलूक है, चरिंद परिंद है, सबको हम लोग देखते हैं। अगर अल्लाह तबारक व तआला इसी नाक को पीछे कर देता, चेहरा नहीं बनता, आंख पीछे कर चेहरा नहीं बनता, बेहतरीन ढांचे में पैदा किया। खुद अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कह रहा है। तो जब अल्लाह तबारक व तआला हमारी तारीफ कर रहा है, तो क्यों नहीं हम उस अल्लाह ताला की तारीफ करें, क्यों नहीं हम उस अल्लाह तबारक व तआला के दीन को फैलाएं। जो अल्लाह हमारे और हमारे अमाल को देखता है, परखता है, वही अल्लाह है जो हमें पैदा किया है, रोजी देता है, कपड़ा देता है, सारे के सारे असबाब,
जिंदगी गुजारने के सारे सामान मुहैया करता है, फिर उसी रब से, फिर उसी अल्लाह से हम क्यों दूर हैं? क्यों हम उसके दीन को बाला ताक रखे हुए हैं? क्यों नहीं ये दीन फैल रहा है? क्यों नहीं हमारे दिल में ये कशिश आती है, ये ख्याल क्यों नहीं आता कि हम अपने दोस्तों को दीन की तरफ बुलाएं? क्यों नहीं हम जो कमाते हैं रोटी रोटी है, क्यों नहीं ये मिस्कीनों और फकीरों में खर्च होता है? ये सारी चीज जानते हुए भी अगर हमारा दीन मुकम्मल नहीं हुआ, हम अपने दीन को मुकम्मल तौर से नहीं जाना, तो गोया क्या हम खैर उम्मत नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दावत को लेकर के आए और इस दावत के फैलाने को जो कहा, उससे अगर हम रूगर्दारी करते हैं तो क्या है कि हम इसके मसूल हैं। अल्लाह तबारक व तआला इसके बारे में पूछगछ करेगा। अब देखें कि माशाअल्लाह सऊदी अरबिया ने इस मामले में, दीन की इशाअत के मामले में जो पैसा खर्च किए हैं, वो चाहे हिंदुस्तान में हो, नेपाल में हो, दुनिया के सारे मुल्कों में देख ले, अल्लाह के फजल करम से यहाँ के लोग, यहाँ के उलमा और यहाँ की हुकूमत क्या है, पैसा खर्च कर रही है। क्यों? सिर्फ दीन से शगफ, दीन को फैलाने के लिए, दीन को लोगों तक पहुंचाने के लिए। और यही वजह है कि आज दुनिया में आप देख रहे हैं गाहे बगाहे कहीं ना कहीं लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। एक से एक वाकयात मिलेंगे, एक से एक वाकयात मिलेंगे कि लोग इस्लाम को कबूल कर रहे हैं और उनके ऊपर ऐसे ऐसे मजालिम और ऐसी ऐसी अजियतें ढाई जा रही है, ऐसे ऐसे तकालीफ दी जा रही है, हमारा बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारा बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि हम तो खुद साख्ता यानी आबाए मुसलमान हैं, हमने इस्लाम को जाना नहीं है, हमने इस्लाम को जाना नहीं है। इस्लाम को जाना है तो जिसने उसने मुताले किया है, जिसने उसको पढ़ा है, जिसने उसकी तरफ अपनी रग़बत जाहिर की है, कशिश जाहिर की है, उसकी छानबीन की है। आजकल आप देख रहे हैं कोई भी इस्लाम कबूल करता है तो वो कभी ईसाईयत में जाता है, कभी कोई धर्म कबूल करता है, लेकिन जब वहां तसल्ली नहीं होती है, जब वहां होती है तो फिर वो दूसरे धर्म के किताबों का मुताला करता है। उससे भी अगर तसल्ली नहीं होती है दूसरे धर्म को, ऐसे ऐसे करके वो इस्लाम तक पहुंचता है। बहुत ही कठिनाई के साथ वो इस्लाम तक पहुंचता है। और जब इसको पा लेता है, जब इस इस्लाम को पा लेता है, तो फिर दुनिया की सारी ताकत एक तरफ और उसका ईमान एक तरफ होता है। दुनिया की सारी ताकत एक तरफ और उसका ईमान एक तरफ, चाहे घर के सारे अफराद क्यों नहीं उनका दुश्मन हो जाए। आज एक वाक़या पढ़ने को मिला है जो कि मुजफ्फरनगर का वाक़या है। उस वाक़ये में एक चचा ने अपने किए हुए कारनामे को दोहराया है। दोहराया क्या है? उसको उन्होंने बताया है कि जब उसकी भतीजी स्कूल पढ़ती थी और पढ़ते पढ़ते आगे की फीस अदा नहीं कर सकी, तो उन्होंने खेत में काम करना शुरू किया, नाम लिखाया, किताबों के लिए पैसे उसी मजदूरी से हासिल करके किताबें खरीदी और वो पढ़ते पढ़ते किसी एक मुस्लिम लड़की से दोस्ती की। और जब वो लड़की उसे इस्लाम के बारे में कुछ बातें बताने लगी तो उसे बहुत रश्क आया, बहुत ज्यादा रश्क आया कि हम इस्लाम के बारे में जाने। उस बेचारी ने उससे इतनी दोस्ती की कि उन्होंने एक किताब दे दिया उनको कि तुम इसको पढ़ो। और वो बच्ची उस किताब को पढ़ती रही। जब वो किताब उनको मिला, वो अपने घर में वो किताब लेकर के गई, तो चचा ने, घर वालों ने कहा क्या है? तो कहा कि ये इस्लाम धर्म की किताब है जिसे मैं पढ़ता हूं। बिल्कुल उसको बहुत मारा, बुरा भला कहा, यहां तक कि वो किताब उसे लेकर के फेंक दिया। लेकिन फिर भी वो इस्लाम के बारे ही में सोचती रह गई, इस्लाम के बारे में ही सोचती रह गई। इस्लाम इतना अच्छा मजहब है, क्यों नहीं हम इसके अंदर तक जाए, क्यों नहीं हम इसकी
छानबीन करें कि ऐसी क्या खुसूसियत है जो हमारे धर्म को बुरा भला करती है। इस दीन के अंदर कौन सी ऐसी बात है जो हमारे धर्म से अलग है। उस बच्ची का नाम, उस लड़की का नाम हीरा था, लेकिन जब वो इस्लाम को कबूल करती है, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जो फुलहत की है वहां तक ये मामला पहुंचता है। उस बच्ची को, वो जो बच्ची जो है किसी मौके से वहां तक पहुंच जाती है और फिर वहां वो इस्लाम कबूल करती है। इसका एक लंबा चौड़ा वाक़या है, बहुत लंबा चौड़ा वाक़या है। किसी डाकू के हवाले भी हो जाती है, लड़की गिरफ्त में आ जाती है, लेकिन उस डाकू में भी एक मुसलमान लड़का होता है। इदरीस नाम बताया गया है, उस लड़के का नाम इदरीस था, लेकिन इस बच्ची को अपनी वो किए हुए कारनामे पर बहुत पछतावा हुआ, बहुत अफसोस हुआ कि हमने जो भी किया, अपने घर से बाहर भागा, ये गलत किया, इससे हमारे घर वालों की इज्जत नीलाम हो रही है, बर्बाद हो रही है। लेकिन वो गुंडा गिरोह, वो जमात उस लड़की के ऊपर कभी गलत नजर नहीं रख सकती। उसने अपने गेम में दाखिल किया, वो अपने गेम में, अपने जमात में दाखिल किया, उसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन जब इसका रोना धोना उस लड़के को नहीं देखा गया तो पूछता है इदरीस कि क्या मामला है, क्यों रोती धोती हो। वो सारे के सारे वाकयात को बयान करता है। कहा आज से मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हें जान लो, यहाँ से आज से तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता। अगर किसी तरह कोई नुकसान है, कोई तकलीफ है तो बताओ। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं अपने माँ बाप को याद करती हूँ, मैं चाहता हूँ कि किसी तरीके से यहाँ से चला जाऊं। अपने भाई को किसी तरह बुलाता है, अपने भाई को किसी तरह बुलाता है, उसके जरिए अपने गेम में बात करता है कि इसको जो है बाहर भेजा जाए ताकि लोगों में हमारे लिए काम करें, बुलाए लोगों को हमारे गेम की तरफ। और अपने भाई को कहता है कि जब ये तुम्हारे पास जाए तो इसको पुलिस के हवाला कर देना और तुम आकर के मुझे इत्तला दे देना कि उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बहुत सारी लंबी चारी कहानी के बाद वो बच्ची इस्लाम को कबूल कर लेती है। और इस वाकयात को जब समझता है, घर वाले को मालूम होता है, घर वाले बहुत ज्यादा पीटते हैं, मारते हैं, तकलीफें देते हैं, यहाँ तक कि जब देखते हैं कि हम लोगों से संभलने वाला नहीं, उसको ननिहाल तक भेज देता है। ननिहाल वाले भी आसिस आ गए कि नहीं, ये बच्ची जब भी है इस्लाम ही के बारे में बात करती है, हमको भी इस्लाम ही की दावत देती है। अपने घर में माँ बाप को परेशान किया, चचा को परेशान किया, घर वाले खानदान वालों को परेशान किया, लेकिन मेरे बस्ती में भी आकर के वो इस्लाम ही की बात करती है। कहा कि तुम इसको ले जाओ, अपने बहनों को फोन किया, कहा इसको ले जाओ, इस बच्ची को हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। आखिर आसिस आकर के इस बच्ची को ले गए। बहुत सारे तजवीज़ात ढूंढने के बाद बजरंग दल का आदमी, बेचारे लोग थे वो लोग, उन्होंने जो है बजरंग दल वालों से फैसला लिया कि क्या किया जाए, हमारे घर में इस तरह हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उसको खत्म कर दो। बहुत लंबी चौड़ी कहानी के बाद बाप और भाई, बाप और चचा मिल करके उस बच्ची के लिए गड्ढा तैयार करता है, 5 लीटर पेट्रोल ले जाकर के उसको जला डालता है, उस बच्ची को जला डालता है। लेकिन वो बच्ची आखिरी वक्त तक क्या कहती है, जब ये कहते हैं कि हम चलो तुम्हारे ले जाते हैं फूफी के यहाँ, भाई ये चचा लोग कहते हैं, तो बेचारी बन सवर के एकदम सज धज करके जा रही है। उससे पहले उन्होंने वसूल किया है, उससे पहले उन्होंने क्या किया है, वसूल किया है। और क्या कही है कि मेरे चचा जान, जाते जाते मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने दे दो। इससे पता ये चलता है कि इसको एहसास हो चुका था, अल्लाह ताला ने कहा किस लिए मुमकिन है इत्तला दी हो, इस तरह की बातें उनको भनक मालूम हुई हो। वो बेचारी गुस्ल करती है और कहती है कि जाते जाते मुझे आखिरी 2 रकात नमाज पढ़ने दीजिए। वो चचा जो वाकया बयान करते हैं वो इसी तरह का वाकया है कि वो बेचारी नमाज पढ़ती है। हम लोग समझते हैं कि उसको किसी तरीके से मालूम हो गया था। जब वो रास्ते जो गुजरते हैं तो जो फूफी के यहाँ जाने का रास्ता है, उस रास्ते से अलग रास्ते जा रहे हैं, फिर भी वो बच्ची नहीं पूछती है कि अब्बा जान ये रास्ता उधर का तो नहीं है, ये रास्ता फूफी के घर जाने का तो नहीं है। हसले कराम की वो नदी के किनारे जाकर के जो एक दिन पहले उन्होंने गड्ढा खोदा था, उस गड्ढे के पास ले जाकर उसमें धकेल देते हैं और कहते हैं लो, तुम जो मुझे कयामत और जहन्नम के अज़ाब से डराते थे, आज उसी आग में मैं तुझे डालता हूं। वो बच्ची
आग में जलते हुए भी क्या कहती है, क्या अल्लाह तू देख रहा है ना, अल्लाह तू देख रहा है ना, तूने उस वक्त भी देखा था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे हिरा में, और आज तू हेरा को देख रहा है। इस्लाम लाने के बाद जो उसका नाम पड़ा था वो हेरा नाम था, आज तू उस हेरा को भी देख रहा है। हे अल्लाह तू गवाह रहना, तू गवाह रहना, हम तेरे इस्लाम के खातिर जा रहे हैं। अलहासिल कहानी क्या है, वो वाकया क्या है, तो बच्ची कहती है कि अब्बा जान मेरे साथ जो तूने किया किया, लेकिन मेरी आखिरी वसीयत है, मेरी आखिरी वसीयत है कि तुम्हारी मौत जो है वो मुसलमान होकर के आए, तुम मरना तो मुसलमान होकर के मरना। बाप का वाकया आता है, बाप उसके बाद से जो भी वाकया खुद समझ सकते हैं कि बाप ने क्या सोचा होगा। बेटी की दावत है, बेटी आग में जल रही है, सामने क्या हो रहा है, बाप अपनी रहम को दिखला रहा है, चचा खींच रहा है कि नहीं जाओ, बहुत सारे वाकये, बहुत लंबी ये है। तो क्या है कि वो बच्ची कहती है कि मेरी वसीयत है कि तुम इस तरह से नहीं मरना, काफिर होकर के नहीं मरना। इस वाकये के बाद उसका बाप बीमार पड़ने लगा, सदमा था कि हम अपनी बच्ची को कैसे जला दिए। आखिरी वक्त था, मौत से पहले उन्होंने अपने भाई को बुलाया और कहा कि भाईजान हम लोगों ने जो कुछ किया वो बहुत बुरा किया, लेकिन ये आखिरी वक्त है, हमें याद आ रही है हमारी बेटी की वसीयत कि उन्होंने क्या कहा था कि मरना तो मुसलमान होकर के मरना, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी बेटी के कलमा को पढ़ लूं। किसी मौलाना को बुलाओ, किसी मौलाना को बुलाओ, करीब की मस्जिद से मौलाना को बुलाया गया और उन्होंने वहां कलमा पढ़ा, उन्होंने कलमा पढ़ा। उस वक्त भाई ने कहा कि मेरे भाई जब मैं मर जाऊं, जब मेरी वफात हो जाए तो मेरा दफन और कफन करना मुसलमानों के तरीके से करना, मुझे जलाना नहीं। बहुत ही दुश्वार था उसके लिए, बहुत ही दुश्वार था उसके लिए कि हम इस माहौल में अपने इस भाई को कैसे हम कफन दफन करेंगे, मुसलमान तरीके से कैसे दफनाएंगे। चुनाचे वो इलाज के घर से वहां से निकल गया, वो इलाज के घर से वहां से निकल गया और बहुत इलाज होने के बाद जब वो कामयाब नहीं हुए, इंतकाल कर गए, तो उन्होंने इस मुसलमान डॉक्टर से कहा कि इसका ऐसा ऐसा मामला है और इन्होंने ऐसा ऐसा कहा था। कहा तुम घबराओ नहीं। फिर मुसलमानों की जमात को बुलाया और फिर उसका दफन कफन हो गया इस्लामी तरीके से। ये चीजें उनके भाई को अब सितारे लगी और आखिर जा करके वो भाई भी इस्लाम कबूल करता है, अपने घर के सारे अफराद को भी वो इस्लाम में दाखिल करता है। क्या सिर्फ एक बच्ची की सब्र इस्तकलाल ने, एक बच्ची की दावत ने सारे अफराद को क्या है, मुसलमान बना दिया। एक बच्ची की दावत ने सारे घर के अफराद को इस्लाम में दाखिल कर दिया। भाई हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। क्या हम अपने घर के लोगों को इस्लाम की तालीमात से रोशनास नहीं करा सकते? हमारे घर में अगर नमाज नहीं पढ़ी जा रही है तो क्या हम उसको नमाज की दावत नहीं दे सकते? जरूरत इस बात की है कि हम इस्लाम को जहां अपने घरों में फैलाएं, अपने दोस्तों में फैलाएं, वहीं हम उन गैर भाइयों में, उन गैर मुस्लिम भाइयों में भी फैलाएं जिनकी दुनियावी तकलीफ को देख करके हमें तरस आता है। तो चाहिए कि उस उखरवी जिंदगी में जहां उसको आग की आज़ाब मिलने वाली है, उसके लिए भी हम फिक्रमंद हो कि हम उसे क्या है, जहन्नम के भी आग से बचाए। बिरादरान इस्लाम, यूं तो दावत के ताल्लुक से कुरान करीम के अंदर बेशुमार आयतें हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहादीसें हैं। इल्म के ताल्लुक से, दावत के ताल्लुक से, इल्म के ताल्लुक से है कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, के इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। तो इल्म दीन कोई जरूरी नहीं है कि आदमी पढ़ना ही लिखना जान ले। अगर आप दावत के फील्ड में आते हैं, दावती प्रोग्राम में आते हैं, वहां से भी आपको कुछ ना कुछ इल्म हासिल होता है। तो आपको चाहिए कि जो इल्म आपको मिल रहा है उस पर आप क्या करें, अमल करें, उस पर अमल करें। इसलिए
के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु कि जो भी इंसान तलबे इल्म के लिए, दीन की जानकारी हासिल करने के लिए, दीन की समझ हासिल करने के लिए, मसाइल को हासिल करने के लिए रास्ता चलता है, क्या है, दीन के मामलात को, दीन की तालीम को हासिल करने के लिए रास्ता चलता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए क्या है, जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। मन सलक तरीकन यल्तमिसु फीहि इल्मा सहलल्लाहु लहु तरीकन इलल जन्नह। इल्म कोई जरूरी नहीं है कि आदमी पढ़ने लिखने के लिए जाए, यही इल्म नहीं है। आपकी नीयत है कि हम जा रहे हैं आज प्रोग्राम के अंदर कोई चीज सीख करके आए, यही इल्म है। ये भी क्या है, इल्म है। अगर ऐसे मामले में अगर आप चल रहे हैं, कदम बढ़ा रहे हैं, तो आपकी कदम कदम पढ़ने की लिखी जा रही है। यही नहीं बल्कि तालिब इल्मों की फजीलत में, इल्म हासिल करने वालों की फजीलत में बेशुमार क्या है, अहादीस वारिद है। और इन तालिब इल्मों के लिए जो भी दीन की तालीम हासिल करने के कहा है, हासिल कर रहे हैं, दुरूस में बैठते हैं, उनके लिए क्या है, मछलियां दुआ करती हैं। क्या है, पानी के अंदर क्या है, मछलियां दुआ करती हैं, फरिश्ते उनके लिए दुआ करते हैं, वो अपना पर फैला देते हैं उनके हिफाजत के लिए। अगर उसको रास्ते में कोई मुसीबत आती है तो उसके ऊपर क्या है, अजर लिखा जाता है। और अगर वो इंतकाल कर जाता है इस आलम में, तो वो शहीद लिखा जाता है। इससे बड़ी कामयाबी क्या चाहिए भाइयों, इससे बड़ी कामयाबी क्या चाहिए कि हम यहाँ पैसे भी कमा रहे हैं, दौलत भी कमा रहे हैं, इसके साथ साथ हमारे लिए दुरूस का एहतमाम होता है, हमें दीन की बातें बताई जाती है। जरूरत इस बात की है कि हम जब दुरूस में आते हैं, प्रोग्राम में आते हैं, तो उलमाए कराम जो भी बाहिस हो, मुहाजिर हो, जो भी चीज कही जाए वो कहता है, बोलने वाला अदा करता है, कुरान हदीस की बात करता है, तो आप उसको गौर से सुने, उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश करें, उस पर अमल करने की कोशिश करें। और इसको सुन करके इसमें से कोई बात आपके ज़हन में आती है, अगर उसको समझ में नहीं आता है, तो आप उलमा से रुजू करने, उसी उस मौलाना से पूछने, और अगर नहीं होता है तो फिर इनसे बड़े आलिम से पूछ लें। और अगर ये जानकारी हासिल हो गई, हमने उसको जान लिया, मुकम्मल तौर से इल्म हो गया कि ये सही चीज है, तो इसको क्या है, अपने दोस्तों तक पहुंचा दो। जो इस दुरूस में नहीं आ सके हैं, इस प्रोग्राम में नहीं आ सके हैं, उस तक प्रोग्राम बता दो कि आज हमने यहाँ गया था और इस तरह की बातें सीखी है, बहुत अच्छी बातें होती है। हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला उसको तौफीक दे और उसके दिल में भी ये ख्वाहिश हो कि हम भी ऐसे दुरूस में हाजिर हों। ऐसा मुमकिन है या नहीं? बिल्कुल मुमकिन है। जब एक गैर मुस्लिम इस्लाम की तरफ राग़िब हो सकता है, एक मुसलमान क्यों नहीं? जरूरत इस बात की है कि उसके सामने इस्लाम की बातें पहुंचाई जाए, क्योंकि ये तो घराना मुसलमान है, ये तो खानदानी मुसलमान है, इन्होंने इस्लाम को जाना नहीं है, समझा नहीं है। जरूरत इस बात की है कि अगर हम समझ लेते हैं तो हम दूसरों को क्या है, समझाएं। यही तो असल दावत है। दावत यही है कि आदमी कोई चीज सीखता है तो उसे दूसरे तक सिखाए, दूसरों को सिखलाए। हम इसे अक्सर लोग तो वर्कर हैं और दिन भर के थकावट होते हैं, थके हुए होते हैं, तो मुनासिब भी नहीं होता है कि प्रोग्राम को तूल दिया जाए। लेकिन फिर भी जो भी बात आपके सामने कही जाती है, कुरान और हदीस से कही जाती है, तो उसके ऊपर आप अमल करें, आप उसके ऊपर अमल करें। और हत्तल इम्कान कोशिश ये करें कि इस तरह का प्रोग्राम चाहे जहां भी हो रहा है, जिस जगह भी हो रहा है, अगर हमारे पास वक्त है, मौका है, तो उसको गनीमत समझे, उस मौका को गनीमत समझे और वहां हाजिरी दे, वहां पहुंचे। हर आदमी जानता है आपके लिए बाज़ाब्ते गाड़ी भेजी जाती है, लाता है, पहुंचाता है, और खाने पीने का भी इंतजाम होता है। अल्लाह मालूम कैसे क्या है, लेकिन अक्सर जगहों पे ये खाने पीने का भी इंतजाम होता है। तो सारा कुछ आपके लिए मुहैया है।
यही तो सबसे बड़ी बात है यहाँ सऊदी अरबिया के, कि वो दीन के मामले में पैसा तो पैसा खर्च करते हैं और खाना पीना सब देते हैं। देखिए जामियात में, इदारे में, मसाजिद के अंदर लोग इल्म लुटा रहे हैं, लोग इल्म लुटा रहे हैं, लूटने वालों की कमी है। एक से एक उलमाए कराम बैठे हुए हैं जो इल्म देने के लिए बैठे हैं, वो चाहते हैं कि कोई इल्म हासिल करे। तो अगर हमको 5 मिनट रोक मिलता है, 10 मिनट रोक मिलता है, तो बैठे वहां सीखने की कोशिश करें। दुआ है, अस्कार है, नमाज के तरीके हैं, नमाज में क्या पढ़ना है, कौन सी दुआ पढ़ना है, क्या सूरा पढ़ना है, हर आदमी को चाहिए कि इसको सीखे। नमाज पढ़ने जाते हैं, 2 मिनट वक्त है, किसी इमाम साहब से, किसी भाई से जिसको आप जानते हैं कि इल्म मालूम है, उसको कुरान मालूम है, उससे कोई सूरा सुन ले, शेख मुझे कोई सूरा सुनाइए, दोबारा उसको आप रिपीट करें, सिहवारा रिपीट करें, कोशिश हो कि हम इसको याद कर लें। छोटी छोटी सूरत से आप याद करना शुरू करेंगे तो बड़ी बड़ी सूरतें भी याद हो जाएगी। और अगर आप नमाजी हो गए तो माशाअल्लाह बार बार वही सूरत दोहराई जाती है, बार बार वही सूरत दोहराई जाती है। नमाज के अंदर देखें खुशी आमतौर से अम्मा पाराई के सूरत पढ़े जाते हैं। इससे क्या है, हमें और आपको फायदा होगा। कुछ चीजें पढ़ेंगे, अगर जिसको पढ़ने लिखने आता है, हिंदी पढ़ने लिखने आता है तो हिंदी में किताबें दस्तयाब है, तमिल पढ़ने आता है तमिल में किताबें दस्तयाब है, उर्दू में, यानी जितनी भी सारी चीजें आपको फ्री में मिल रही है। इससे अच्छा मौका कहाँ आपके गांव में मिलता है? कहीं नहीं मिलता होगा। एक वर्ग के लिए आप तरस के रह जाएंगे, किसी से आप मांगेंगे भी तो किताब देने को तैयार नहीं होगा, किताबें दस्तयाब नहीं है। यहाँ माशाअल्लाह आप जितनी किताबें लें, जिस ताल्लुक से लें, जो भी कैसेट लें, जिस तरह की सीडी लें, सारी की सारी चीजें क्या है, मुहैया है। यही ना है, इल्म को यही इसी तरह लुटाया जा रहा है ना। कमी है कि हम और आप लूट नहीं पा रहे हैं, सीख नहीं पा रहे हैं। एक से एक पुरानी आयत में है ना, जो क्या एक कैसेट है जो कि पढ़ता है और फिर बच्चा पढ़ता है पीछे पीछे, इस तरह की कैसेटें हासिल करें और कुरान जब पढ़ी जाती है तो उसको दोहराएं। इसी से ना आएगा। अगर आप पढ़ना लिखना नहीं चाहते हैं तो इसी से ना आएगा कि आप कुरान की सूरतें कैसे याद करेंगे, सुन करके ही याद कर सकते हैं। आप जब उससे याद कर ले तो फिर किसी को सुना दे, इससे बेहतर तरीका नहीं है। जरूरत इस बात की है कि जो भी हो सके, जितना भी हो सके, जहां हम अपने बाल बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए सोच रहे हैं कि हम पैसा कमाएं, हमारे बच्चे बीमार पड़े तो उसके इलाज में जाएं, हमारे प्रॉपर्टी बने, हमारे बच्चे भूखे ना मरे, ये सारी चीज सोच रहे हैं ना, तो वहां ये भी सोचिए कि हमारी आखिरत भी बने, इस सऊदी अरबिया वालों ने अगर कंपनियां फैक्ट्रियां खोली है तो माशाअल्लाह यहीं पे उन्होंने इल्म का भी क्या किया है, खजाना दिया है। उन्होंने इल्म का भी खजाना दिया है। वो इल्म लुटा रहे हैं तो आप दौलत के साथ साथ इल्म को भी लूटें और उसके साथ साथ अपने अमल को संवारें, ताकि कल क़यामत के दिन शर्मिंदा न होना पड़े, कल क़यामत के दिन लोगों के सामने रुसवा न होना पड़े, जलील न होना पड़े कि हमने सऊदी अरबिया जा करके नमाज का तरीका नहीं सीख सका, सऊदी अरबिया जा करके नमाज पढ़ी जाने वाले अलहम्द शरीफ को नहीं जान सका, मुअज़्ज़ितैन को नहीं जान सका, जो तमाम बीमारियों का इलाज है। इन चीजों को हमने नहीं जान सका तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मायूस कुन बात है कि हम इस जैसे देश में, इस जैसे जगह में रह करके भी हम अपने अमाल को नहीं संवार सके। अल्लाह तबारक व तआला से हर आदमी दुआ करे कि अल्लाह तबारक व तआला हमें माल के साथ साथ, हमें मालो दौलत के साथ साथ दीन की भी समझ अता करे। अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया के साथ साथ दीन भी अता करे। जहां हम धन दौलत लूट रहे हैं वहां इल्म भी लूटने की तौफीक अता फरमाए और हमने जो कुछ भी सीखा है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जो कुछ भी हमने सीखा है, जाना है, उसे लोगों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।